I've heard many people, I have my own friends who say, boss, who will invest 1 crore in real estate because apartment did not appreciate. 1 crore आप क्या ही लोगे बॉम्बे में, right? And वही बंदा जाके फिर आप एक Mercedes Benz खरीद लेगा. So how does that justify? Everything's not about CAGR as well, and Correct. everything's similarly. When you need stability, आपको stability चाहिए, so you need a house as well. Correct. So that way. So areas I would say holiday home segment areas, and now Kasauli is doing very well. North India में we're seeing Kasauli. Shimla is doing very well. Again holiday homes. Those segments are very quirky segments. अच्छा एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या है. एटलीस्ट मैंने अपने क्लाइंट्स में सो फार इतना ब्रोकरेज क्लाइंट्स, क्लाइंट फोन करता है, बोलता है मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है. इन रियल एस्टेट दैट वर्ड इन्वेस्ट इज वेरी लूजली थ्रोन अराउंड. तो आई आस्क देम नाउ, क्या आप इन्वेस्टर हो? क्लाइंट बोलेगा हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ, और इंडियन जाके अपार्टमेंट खरीद लेगा. गॉट इट. सही बात है. आप इन्वेस्टर कहाँ हुए? नहीं हुए. राइट. अगर आप इन्वेस्टर है, मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस दूंगा. कम, डू यू वांट टू मेक अ वेयरहाउस फॉर अ क्लाइंट? करेक्ट. लेट्स कंस्ट्रक्ट समथिंग. मेक अ वेयरहाउस. वेयरहाउस फटाक से बनता है. तो ब्यूटी ऑफ आवर वेयरहाउस, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्रेड A warehouse very quickly. Right? Do you have the time and patience to go look at land, go find a client, build to suit warehouse करो? Your rental yield will drastically shoot up. पर मेहनत है उसमें. Right? आप आइए, शेतकारियों से बात करिए, get cheap land. What about Panvel and all? Panvel is good, very good. Mumbai 3.0 is very, very good. Right? But right now there's some zoning it's happening. MMRDA is the planning authority, and they're going to come up. Panvel, I'm super bullish on Panvel because Bombay is surrounded again by water on 3 sides. आप कहाँ extend करोगे? Naturally right side. And Navi Mumbai is a phenomenal growth story. Even in Navi Mumbai, I think in 2000, similar time, 2005 की बात है. 2005 में Palm Beach Road में उस time, which is now the best, one of the best areas in Navi Mumbai, I think 35 लाख में आपका 3 bed आ रहा था. वो यार 4.5 करोड़ हो गया है वो भी. राइट? सो सिमिलर कैगर होगा, लेकिन आप देखोगे इन स्पाइट ऑफ सक्सेसफुल ग्रोथ स्टोरी, आई थिंक 12 से 13% का ही कैगर होगा वो. राइट. या सो पनवेल इज गुड, बट पनवेल प्रिडोमिनेटली लोग अभी फर्स्ट होम डेस्टिनेशन बन गया है. लॉट ऑफ पीपल स्टे देयर इन अपार्टमेंट्स. अब पनवेल क्या कर रहे हैं? आपने बोला पनवेल हाउस पनवेल. नाउ आई हैव सेड पनवेल इज गुड. नाउ इन अ लाइफ सिनेरियो आई एम थिंकिंग ऑफ पनवेल लैंड, and you must be thinking of Panvel apartment. Apartment, yes. So you will go buy an apartment in Panvel, which even if you buy in the best building in Panvel, might give you 12% CAGR like a Samudra Mahal did. Correct. Or like a Planet Godrej did. But if we add up the rental yields, then तो 15% हो गया ना, 15-16%. नहीं, but why would you add the rental yield? Because I am investing and giving it on rent. No, but for example, there's another way to do it, right? अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला होता, 15% मिलते आपको उसी पैसे के. Correct. You made a negative spread of 12%. Rental yield is only 3%. Correct. Plus 12% property appreciation, तो 15 कमाया ना मैंने. नहीं, but उसमें आप मेंटेनेंस काटोगे, नेट आपका 1.5 हुआ है, या around 14 with if you count. Which is good, no? Then 14-15%. Yeah. Because see, I was interviewing Ashish Somaya of White Oak Capital, and he said very beautiful statement. ना वो बोलते हैं कि उनका asset allocation मैंने पूछा 50% equity, 50% real estate. He is a hardcore equity guy. White Oak Capital, White Oak AMC, he manages that. What he told me कि रेंटल यील्ड भले ही 2-3% है, बट ये रेंटल यील्ड हमेशा 2-3% ही रहता है. इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट हो रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हारा 2-3% कांस्टेंट है. सो ही वाज टेलिंग ही मेड 14-15% CAGR ऑन हिज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. ही मेड 15% CAGR ऑन हिज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. सो आई एग्री. सी, एक चीज समझना अपने को, ओवर द इयर्स आई हैव आल्सो इवॉल्वड एज एन इन्वेस्टर. हालांकि मेरा सारा म्यूचुअल फंड्स में रहता है. आई वुड वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो इन अ फिजिकल रियल एस्टेट बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड and I can't deal. As I said, every line is important. और मैं म्यूचुअल फंड टर्म्स एंड कंडीशंस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रियल एस्टेट टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे समझ के बाहर है. बट आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एसेट एलोकेशन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर एसेट क्लास खराब दौर और अच्छे दौर से गुजरती है. अगर आप रियल एस्टेट एसेट क्लास 10 साल का लल रहा है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस, बट आई हैव अ डिफरेंट वे एंड आई विल शो यू हाउ आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट. आई मे नॉट डू द आशीष सोमायाज रूट कि मैंने फिजिकल ले लिया और रेंट पे डाल दिया, बिकॉज वो नहीं हो पाएगा मेरे से. बाइंग एंड सेलिंग एंड फिर टेनेंट ढूंढो, बहुत मगजमारी है. बट मैं आपने मुझसे पूछा कि अभी क्या है, कैसे. सी, द ब्यूटी विद म्यूचुअल फंड्स इज, ये बहुत सारे फंड्स हैं, आप देखो,
ये बेस्ट परफॉर्मर जो मैंने आपको लमसम बताया था, अगेन देयर इज नो पॉइंट गोइंग टेकिंग द नेम, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि ये जो 25 साल में बेस्ट हुआ है वो आने वाले 25 साल में बेस्ट नहीं रहेगा. व्हाट इज द आइडिया टू गिव यू? यू आर अ कॉमन इन्वेस्टर, हम सब कॉमन इन्वेस्टर हैं. आपने अगर बेस्ट में डाला होता तो आपका XIRR 10,000 रुपए की SIP 25 साल में की है तो 8.5 करोड़ रुपए आपने बना लिए, द बेस्ट वन. एंड हाउ मच XIRR यू वांट? 22%. सपोज यू आर द अनलकीस्ट इन्वेस्टर और आपने लास्ट वाले फंड में डाला और आपका जो 10 यानी आपने कितने डाले 25 साल में? आपने 30 लाख डाल दिए. आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट SIP में 1 करोड़ 38 लाख बना है, which is 10.71%. which is 10.7. So it's अच्छा, you will never be in the best, you will never be in the worst, you will be somewhere in the middle. You agree? Average, law of average. आपने अगर एवरेज भी रिटर्न बनाया ना कुशल, आपने 17% का कैगर का रिटर्न बनाया है और आपका 30 लाख 4 करोड़ के आसपास का आज हो गया है इन 25 इयर्स. ये ईयर 2000 में सिर्फ इतने ही फंड्स थे क्या? ये 25 साल कंप्लीट किए हैं. सो आई एम गिविंग यू लॉन्ग टर्म, जिन्होंने 25 साल इज अ गुड टाइम फ्रेम, ऊपर नीचे सब देख लिया. और 10,000 रुपए की SIP कोई भी कर सकता है. व्हाट डिड अ एवरेज इन्वेस्टर मेड? 10,000 की SIP मैंने 4 करोड़ रुपए बना लिए हैं, राइट? तो दैट इज, इसमें ना टाइमिंग की जरूरत है आपको, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, और 10,000 सब कर सकते हैं. So this is how I do. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.